Yesterday's class we have discussed the introduction of Jacobean drama. Okay, I hope it's completely clear to you all. Now today we have to move uh, to the writers of the Jacobean drama. Writers means the playwrights of Jacobean drama. Okay, the first thing is here that major playwrights of Jacobean drama. The prominent playwrights of Jacobean drama is Ben Jonson is the major figure, okay, who can be called as the prominent or father figure of Jacobean drama, and thereafter John Webster, Francis Beaumont, John Fletcher, George Chapman, John Marston, Cyril Turner, John Day, Thomas Dekker, Thomas Middleton, Thomas Haywood, John Webster. Sorry, I have repeated John Webster. That's wrong. Sorry, not John Webster. I have repeated it. Okay. Next is John Ford, Philip Messenger, and James Surrey. These are almost 14 prominent writers. These are almost 14 prominent playwrights. Okay. So we move ahead one by one on these playwrights. That is, first of all, John Webster, thereafter on, sorry, first of all, Ben Jonson, thereafter John Webster. Okay, so I'm moving to Ben Jonson. Okay, the first writer for today is Ben Jonson. The complete name is Benjamin Jonson. Ben Jonson is the short name for Benjamin Jonson. His birth year is 1573 and died in 1637. Okay. So, note down some points. That is, he's famous poet and playwright. Poet and playwright. Okay. And best known for his comedy of humors. Okay. Comedy of humors. And he wrote, next point, that he wrote satirical plays, tragedies, and comedies. Okay, three type of plays he has written. तीन प्रकार के क्या लिखा उसने satires लिखे, tragedies लिखे and comedies लिखे. एक बात आपको यहाँ पर स्पेशली रिमेम्बर करना चाहिए, his satires and comedies are common.
Means his comedies are satirical comedies, or his satires are comedies. Okay, this point is clear. So uh, the very important point is that he wrote only two tragedies. He wrote only two tragedies. Remember the name? One is Sejanus, 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 and the other is number one, Sejanus, and number two is Catiline. Catiline. Okay, these are only two tragedies written by Ben Jonson. All other plays by Ben Jonson are comedies that are satirical comedies or comedy of humors or city comedies. There are three type of comedies intermingled together in the comedies of Ben Jonson, that are comedy of humors, satirical comedies, and city comedies or citizen comedies. Okay, so move to the next point. If you have any question, any query, any problem, you must write or say loudly. Okay, so he attended, it's about his education. He attended Westminster School, Westminster School, Westminster, Westminster School, and Cambridge University. Okay, next point is about his career. That is, he volunteered as soldier in Netherlands, in Netherlands, returned back to England, returned back to England, and worked as actor, and worked as where two others. I'm talking about Sana and Kalyani. Just a minute, let me text them. Okay, so uh, he returned back to England and worked as actor. Okay,
He, as an actor, you may write as next point, that is, as an actor, he played the role of played the role of Hieronymo. Hieronimo. Hieronymo in Kids Spanish, the Spanish tragedy. Kids, the Spanish tragedy. Okay, remember this role. And thereafter he started writing. Next point is that he, Hello, sir. Good evening. yeah, Kalani, So I'm sorry, sir, for late. don't worry, no issue. Keep on. Thank you, sir. Okay, he turned to playwriting, writing in about 1596, 95, 96. Okay, his first famous play, his first famous play was Every Man in His Humor. Every Man in His Humor. Okay, 1590. Sorry, 1598. Okay. Remember one thing here. Uh, Every Man in His Humor is not Ben Jonson's first play, but it is Ben Jonson's first famous play. Means the play which made Ben Jonson famous as a playwright, which established Ben Jonson as a playwright. Okay, so uh, now there is some other points, that is, we may see that list of his plays. ओके, यहाँ पर ये जो प्लेज की लिस्ट है, दिस इज इन अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. ओके, so you may take screenshot of the list, or you may note it down. I'm reading it with its spelling. First place, A Tale of a Tub, 1596. Second is The Isle of Dogs, 1597. It was written in collaboration with Thomas Nash. Okay, and the third one is The Case is Altered, 1597, 98, possibly written in collaboration with Henry Porter and Anthony Munday. Anthony Munday and Henry Porter. Possibly, it's not surety. It's possibly that is written in collaboration with Harry Potter and Anthony Munday. Munday. Okay.
Next, fourth one is which established Ben Jonson as a playwright, that is every man in his humor. EVERY, every man in his humor. HUMOUR. 1598. Fifth one is every man out of his humor. 1599. It is one of the play in the series of War of Theatres. Okay, and next one is Cynthia's Rebel. CYNTHIA apostrophe S Rebels. REVELS 1600. And next one is seventh one, that is the Poetaster. POETASTER Poetaster 1601. Next one is Sejanus, his fall 1603. The first tragedy by Ben Jonson. Okay, and next one is Eastward Ho, one of the War of Theatres. Sorry, not of War of Theatre. It's not of War of Theatre. Okay, Eastward Ho 1605, a collaboration with John Marston, George Chapman. Okay, ये इन तीनों ने मिलकर के लिखी थी. And remember one thing about Eastward Ho, that it is a satire on the life of Scotland, Scottish life, that infuriates King James I because he was from Scotland, and it results into imprisonment of the writers. Okay, next, 10th is Volpone, very important play, 1605 06. Volpone spelling is VOLPONE, Volpone. And next important play is Epicene, EPICOENE, Epicene, or The Silent Women, WOMAN 1609. Very important play. And next one is Alchemist, also important play, 1610, ALCHEMIST, Alchemist. And number 13th is Catiline, his conspiracy. Catiline, CATILINE, his conspiracy, 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 1611. This is the second tragedy. Tragedy by Ben Jonson. Okay. Next one is Bartholomew Fair, 1614, BARTHLOMEW Bartholomew Fair, 1614. And 15th is Devil is an As, 1616. Devil is an As, 1616. Next one is The Staple of News, 1626. And 17th one is The New Inn, or subtitle is The Light Heart, LIGHT, Light Heart, HEART, 1629. Okay, and number 18th play is The Magnetic Lady, or subtitle is Humorous Reconciled, Humors Reconciled, 1632. The Sad Shepherd, remember this point about this play, that is, it is unfinished, means Ben Jonson died before completing this play. Okay, it is a pastoral. And last one is Mortimer, his fall. Mortimer, his fall, 1641. That is a kind of history play. Okay, these are the 20 plays by Ben Jonson. I hope it's clear to you all.
Now move to the questions which has been asked from Ben Johnson. The first is, out of four humors of the body, the Jacobians thought of themselves as especially prone to. Okay, Jacobians were especially prone to the melancholy. Okay, temperament of melancholy. Yesterday I have told you that out of the four temperaments, Jacobians were very prone to mood of melancholy, temperament of melancholy. Okay. Uh, Next is, Ben Jonson disliked. What disliked Ben Jonson? There are four options and you have to choose two. The first is fantastic comedy. Yes, because he has written 17 comedies out of 20 plays. Okay. Next one is wide range chronicle history and stupendous tragedy. बिल्कुल नहीं. Sorry, dislike पूछा. I'm sorry. So sorry. This is liked by. This is liked by Ben Jonson. Okay. And the comedies of Terence and Plautus. This is also liked by Ben Jonson. And the ability of satire to expose human voices and follies. Ability to satire. That is correct option is here, first and second. Fantastic comedies, but he likes comedies but not fantastic comedies. He likes comedies of humorous comedies and satirical comedies. Okay, that's why this is right. And wide range of chronicle history, stupendous tragedy is disliked by Ben Jonson, but the comedies of Terence and Plautus, that are the comedies of humors and the ability of satire to expose human vices, is also liked by, because he has used extreme range of satires in his comedies. Okay, तो बेन जॉनसन ने अपने कॉमेडीज में सटायर यूज किया है और उसकी कॉमेडीज जो हैं आर बेस्ड ऑन प्लॉटस एंड टेरेंस. ओके, प्लॉटस का यहाँ एक प्ले आप याद रखिएगा, दैट इज प्ले इज पॉट ऑफ गोल्ड. Okay, this is also an example of comedy of humors. Okay, and the comedies of Ben Jonson are inspired from the comedy of Plautus and Terence, and Pot of Gold is one of them. Clear? Any doubt, any question regarding these two questions? The next question is third one. Ben Jonson's comedies are. Okay. If you see in all plays, in all the four options, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Total there are 7 plays. Okay, total 7 plays हैं. अब इनमें से आपको ये पता लगाना है कि किस ऑप्शन में ओनली बेन जॉनसन की कॉमेडीज लिखी. अब जरा चेक करिए. फर्स्ट, नंबर 1 वोल्पोन बेन जॉनसन की है.
बार्टलोमी फेयर बेन जॉनसन की है, अभी हम लोगों ने देखा. बट द शूमेकर्स हॉलीडे इज नॉट रिटन बाय बेन जॉनसन, इट इज रिटन बाय थॉमस डेकर. थॉमस डेकर. Okay. Now come to Volpone is written by Ben Jonson. Alchemist is written by Ben Jonson, and Epicene is also written by Ben Jonson. Your option is second one. Okay. Option B is right, but here Volpone is by Ben Jonson, Alchemist is by Ben Jonson, but The Night of the Burning Pestle is not written by Ben Jonson. It is written by Francis Beaumont. Francis Beaumont. Okay. Any doubt? Any question now? Volpone is by Ben Jonson. Epicene is by Ben Jonson. Shoemaker's Holiday is by Thomas Dekker. Okay. I hope this question is completely clear to you all. So now we have to move to the plays by Ben Jonson. So before moving to the plays, if you have any doubt, any question, please ask or let me go for next. I'm waiting for your questions. Okay, Satyal clear. Hello. Yes, Gulshan. Sir, I want to ask you, Yeah. all of the play of Ben Jonson's, we need to study Yes. all of the plays or important plays. You must study only All of- important plays. Important plays. But remember the All- title of all the plays. I'm going to teach the plays in detail. There are only Okay, sir. 3 or 4 plays which has been asked directly in questions, and uh, 2 or 3 more which has been asked in mixed questions, means in together with other writers and other plays. Okay. So Okay, sir. उनको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं उनको हम और ज्यादा डिटेल में करेंगे. देयर आफ्टर बाकी को उसको हम केवल नाम लिख करके छोड़ देंगे. ओके. Okay, sir. आगे चले. सो नेक्स्ट वोल्पोन. very famous play by Ben Jonson. Now come to the play in detail. देखिए एक क्वेश्चन तो आया था लेकिन मैंने इसमें लिखा नहीं है और मुझे ईयर भी नहीं याद है. ठीक है. लेकिन वो क्वेश्चन इस यहाँ से था, ये जो लिखा हुआ है सामने आपके, ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स. वहां पर क्वेश्चन था कि विच एनिमल डज नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन द वोल्पोन्स बेन जॉनसन. ओके, सॉरी, बेन जॉनसन्स वोल्पोन. बेन जॉनसन के वोल्पोन में कौन सा एनिमल एज कैरेक्टर अपीयर नहीं होता, ये ऐसा क्वेश्चन आया था. मुझे ईयर नहीं याद है, बट जहां भी ये क्वेश्चन जिस भी पेपर में था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन. ओके. सो ऑप्शन में जो भी रहा हो आंसर, यहाँ पर ये इतने कैरेक्टर्स हैं जो कि एज एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. पहला जो टाइटल है वोल्पोन, वो फॉक्स को रिप्रेजेंट करता है. मॉस्का जो उसका सर्वेंट था वो फ्लाई को रिप्रेजेंट करता है. वोल्टेयर वल्चर को रिप्रेजेंट करता है. कार्पेशियो रेवन को रिप्रेजेंट करता है. एंड कार्विनो क्रो को रिप्रेजेंट करता है. और लेडी वुडबी इज रिप्रेजेंटिंग पैरेट. तो इन जो है 6 को आप याद रखिएगा: फॉक्स, फ्लाई, वल्चर, रेवन, क्रो, पैरेट. FFV RCP, ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है. FFV RCP. ओके. फॉक्स,
fly, vulture, raven, crow, okay, and parrot. क्लियर? दूसरा आपको याद करने का एक और तरीका है. वोल्पोन इज Latin, I think Latin word for fox. Okay, and Mosca is fly, vulture, Walter. Okay, vulture, Walter, very similar. And Corvino, crow, and Corvatio, that is raven. ठीक है. रेवन और क्रो में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अगर आपने कभी कौवों को ध्यान से देखा हो तो कभी कभी कुछ ऐसे कौवे दिख जाते हैं जिनकी गर्दन पर एक ब्राउन स्ट्रिप होती है. तो जिनकी गर्दन पर आपको ब्राउन स्ट्रिप दिखे तो वो रेवन है, और जो पूरी तरह से ब्लैक दिखे वो भैया क्रो है. ठीक है, तो क्रो और रेवन में डिफरेंस समझ लीजिएगा. सो नाउ मूविंग टू द प्ले. The year of writing and performance is 1605 and 1606. Okay, so the subtitle of the play is The Fox. Okay, the title character of the play is Volpone, and Volpone is representing here cleverness. Okay, and it contains, next point is, it contains the elements of city comedy. Elements of city comedy. Okay, and beast fable, and beast fable. Sorry. Okay, ये सिटी कॉमेडी आपने लास्ट डे समझा हुआ था, सिटी कॉमेडी और सिटीजन कॉमेडी. बट ये बीस्ट फेबल क्या होती है, क्या आपको पता है? बीस्ट फेबल आर द स्टोरीज that deals with animals as characters. Okay, ऐसी स्टोरीज जहां पर कैरेक्टर्स कौन होते हैं? एनिमल्स. Okay, and those animal represent some virtue or something. Clear? These are beast fables. The play is satire. Next point. The play is a satire of greed and lust. Okay, देखिए ग्रीड किसमें किसमें है? वोल्पोन में ग्रीड है, मोस्का, वोल्टेयर, कॉर्वेशियो एंड कॉर्वेनो. ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रीड को. और लस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला ओनली एक कैरेक्टर है, वोल्पोन, who tries to seduce Carveno's wife. When he failed in seducing Carveno's wife, he tries to rape her. Okay, this is a satire on greed and lust. Now we should move to the story. Okay, the story, the plot line, we can start with the character of Volpone. Okay, his servant is Mosca, and
With the help of Mosca, Volpone assumes that he spread false news that he is suffering with a fatal disease and he is on his deathbed and he is going to die very soon. Okay? जब ये खबर पहुंचाता है तो यार यहाँ पे 3 लोग और हैं, बड़े लालची लोग. वो कौन है? पहले है मिस्टर वॉल्टेयर, and second is Carpaccio, 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 and third one is Carvino. ठीक है, ये 3 ऐसे पर्सन्स हैं who are very near and dear to Volpone and wants that Volpone must inscribe the name of them on the will for inheriting the property. वोल्पोन, ये तीनों ही चाहते हैं कि वोल्पोन उनको अपनी प्रॉपर्टी पाने के लिए अपनी विल में इनको नामित करते हैं. ठीक है, और ये तीनों के तीनों क्या करते हैं? जब ये डेथ बेड पर है तो इसके पास आते हैं, इसलिए क्या लेकर के? वेरी वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. इसी के लिए वो मॉस्का के साथ मिल करके अपने आप को डेथ बेड पर अनाउंस करते हैं. ठीक है, कि लोग उससे मिलने आएंगे और महंगे महंगे गिफ्ट लाएंगे और अधिक धन वो लोग इकट्ठा. और ये काम करने के लिए मॉस्का इन तीनों को बहुत इंकरेज करता है और सबसे तीनों से वादा करता है दैट ही विल सजेस्ट वोल्पोन टू मेंशन टू इनस्क्राइब देयर नेम ऑन हिज विल. ओके, तो बीच में एक दिन मॉस्का वोल्पोन को बताता है कि कार्विनो हैज अ वाइफ. कार्विनो हैज अ वाइफ. नाम क्या है इसका? सीलिया. एंड सीलिया इज वेरी ब्यूटीफुल. सो वोल्पोन assumes a disguise of Escoto, the Mountebank. SCOTO, Escoto, the Mountebank, MOUNTBANK. और इस फाल्स डिस्गाइज में कहां पहुंचता है? टू सी सीलिया. सीलिया को देखता है और लट्टू हो जाता है एंड ही डिसाइड्स टू गेट सीलिया ऑन हिज बेड. और इसके लिए वो मॉस्का से मिलकर के एक प्लॉट दैट जब ये इसको देखता है, ही डिसाइड्स टू ब्रिंग सीलिया ऑन हिज बेड. ओके, एंड ही प्लॉट्स विद मॉस्का and Mosca tells Corvino that if Volpone get a lady on his bed at night, he will be cured. वो सही हो जाएगा, उसको क्योर मिल जाएगा इस चीज का. Okay, then Corvino is ready to send his wife Celia on his bed for a night. So एक यहाँ पर बीच का प्लॉट और आता है दैट मॉस्का जो है वो कार्पेशियो से कह करके डिसइनहेरिट कराता है. डिसइनहेरिट्स हिज सन नेम्ड बोनेरियो, BONARIO. बोनेरियो. वो क्या करता है? बोनेरियो को
कॉर्बेशियो से डिसइनहेरिट करा देता है। और जिस दिन ये सीलिया को कॉर्बिनो लेकर के वोल्पोन के पास आता है, सेम टाइम बोनेरियो जो है वहां पर आता है। तो बोनेरियो को क्या करता है, मॉस्का दूसरे कमरे में छिपा देता है और वोल्पोन एंड सीलिया आर टुगेदर इन ए रूम। बट जब जो है उसको तरह तरह का लालच दे करके सीलिया को सेड्यूस नहीं कर पाता वोल्पोन, देन ही डिसाइड्स टू रेप सीलिया। बट व्हेन ही ट्राइज टू रेप, Bonario comes and saves Celia. Both goes to police, and there was a case. And at the end, Volpone gets a disguise and announced himself as died, and he gives his property to Mosca as a heir. Okay, अपनी विल में मॉस्का को अपना हेयर घोषित करता है और फाइनली प्ले एंड होता है, इनको कुछ नहीं मिलता है। ओके, एंड आउट इन द स्टोरी। आई थिंक इतने से आपका काम चल जाएगा। स्पेशली आपको ये कैरेक्टर्स रिमेंबर रखने हैं, स्टोरी का प्लॉट लाइन रिमेंबर रखना है। करना आपको इतना है कि एक बार किसी भी सोर्स से आप अगर सेल्फ से इसकी समरी पढ़ लेंगे, वो सोर्स आप चाहे डेविड डचेस का बुक यूज कर लें, विकिपीडिया यूज कर लें, ग्रेड 7 यूज कर लें, ठीक है, अदर कोई वेबसाइट है उसको यूज कर लें, कहीं से अगर समरी पढ़ लेंगे देन बेस्ट है। नहीं तो आपको यूट्यूब पर भी इनकी समरी इजिली मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि एक बार पढ़ने का समय है देन पढ़ लीजिए, नहीं तो इस डिजाइन पे आप समरी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। आपको इनका रिलेशन समझ में आना चाहिए, क्या हुआ था प्लॉट। क्लियर? सो नाउ मूव टू क्वेश्चंस फ्रॉम वोल्पोन एंड हियर इज अ लाइन। क्वेश्चन कह रहा है इन द very opening scene of Volpone. Very opening scene means Act 1 and Scene 1. Okay. The protagonist. Protagonist means Volpone. Says, "Open the shrine, that I may see my saint." वो कहता है कि मंदिर खोलो जिससे मैं अपने सेंट को देख सकूं, सो दैट आई कैन सी माई सेंट, आई कैन सी माई गॉड। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि बाय द वर्ड सेंट वोल्पोन इज रेफरिंग टू, सेंट को किसे रेफर कर रहा है? ग्रीडी पर्सन के लिए जो वेल्थ होती है, धन होता है, वही ईश्वर होता है, वही देवता होता है, वही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ही इज रेफरिंग गोल्ड, वो यहाँ पर सेंट को गोल्ड रेफर कर रहा है। अब यहीं पर एक चीज और, ये श्राइन किसको रेफर कर रहा है? श्राइन इज रेफरिंग टू द बॉक्स और ट्रेजर जहां पर सोना रखा हुआ है, ठीक है। जहां पर गोल्ड रखा हुआ है उस जगह को, उस चीज को, उस बॉक्स को, उस तिजोरी को यहाँ पर एज श्राइन रेफर किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्क इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजेडी? आई थिंक मुझे इसका आंसर देने की जरूरत नहीं। यू मे आंसर दिस क्वेश्चन। What is the answer?
सी वोल्पोन। ओके, देखिए आप पढ़ चुके हैं हेमलेट इज अ रेवेंज ट्रेजेडी, डचेस ऑफ माल्फीज और रेवेंज ट्रेजेडी। अभी इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस पर चर्चा हो चुकी है, हम लोग इसको रेवेंज ट्रेजेडी पढ़ चुके हैं। एंड गार्बोडक इज रेवेंज ट्रेजेडी, बिल्कुल बिगनिंग ऑफ ड्रामा में हम लोगों ने पढ़ा, और अभी अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि वोल्पोन इज अ सिटी कॉमेडी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लासिकल इन्फ्लुएंस ऑन बेन जॉनसन, वेल वोल्पोन इज। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, जोवेनल, प्लॉटस, टेरेंस, जुवेनल, प्लॉटस, टेरेंस एंड एरिस्टोफेनस। तो एक बात तो रिमेंबर रखिए कि जुवेनल का कोई इन्फ्लुएंस बेन जॉनसन पर नहीं है। इन्फ्लुएंस किसका किसका है? प्लॉटस का इन्फ्लुएंस है, टेरेंस का इन्फ्लुएंस है एंड एरिस्टोफेनस का इन्फ्लुएंस है। तो यहां पर प्लॉटस और टेरेंस का इन्फ्लुएंस नहीं है, वोल्पोन इज इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम एरिस्टोफेनस। ओके, early ancient Greek comedy writers. Next, please, Alchemist. The Alchemist. Okay. Sana and Kalyani is absent today. Okay. Come to the Alchemist. ठीक है? Alchemist is a story of Lovett. Alchemist is a story of Lovett, written and performed in 1609. 1609. And it is the story of Lovett. Okay. Lovett left his home during the time of the outbreak of plague in London. अब यहीं से ये चीज याद रखिएगा, प्लेग नहीं तो कोरोना एपिडेमिक भी आ सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां पर आया था कि लविट लेफ्ट हिज, आई थिंक क्वेश्चन ये था, द एपिडेमिक मेंशन्ड इन द प्ले अल्केमिस्ट इज, तो वहां डिफरेंट एपिडेमिक्स के नेम थे, जो आपका आंसर था प्लेग, ठीक है। कौन सी एपिडेमिक है? प्लेग की एपिडेमिक, क्लियर। एंड he left his house in, Hello. yes Kalyani. Hello sir. Yes Sir, what is sir, you now you told about corona. What is corona, sir? just I'm kidding that there may be an option of corona epidemic, okay. Means there may be an option now,
That Thank you. is corona epidemic. When Lovett has left his house, he left his house in corona epidemic. No, this is wrong. He left his house in the epidemic of plague. Okay, remember this point. Yes, sir. Thank you. Thank you, Okay. sir. Okay. So next thing is he left his house in charge of uh, his servant in charge of his servant named Jeremy. Remember his name? Jeremy the butler. Okay. एंड जैसे ही लविट अपना घर छोड़ के जाता है, द जर्मी द बटलर गॉट अ चांस टू यूज द हाउस एज अ प्लेस, ठीक है, फॉर हिज वर्क ऑफ अल्केमी, एंड द स्टोरी बिगिंस विद जर्मी, एंड हियर इज जर्मी. Jeremy the butler, he start alchemy along with his only two supporters. He starts with two supporters. Those are subtle and dull common. Okay, subtle is a con man, is a con man. Con man is a person who deceive others, जो दूसरों को धोखा दे करके उससे पैसे ऐंठते हैं, ठीक है. And dull common is a prostitute. A prostitute. Okay. Dull common is spelling D-O-L, dull, C-O-M-M-O-N, dull common. And subtle is S-U-B-T-L, subtle. Okay. And Jeremy transformed himself as Captain Face. Captain Face. जब तक लविट है तब तक ये जर्मी है, और लविट के जाने के बाद ये कौन बन जाता है? कैप्टन फेस. एंड आफ्टर द रिटर्न ऑफ लविट ही अगेन बिकम जर्मी. ओके, सो दे स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ अल्केमी, एंड they started making others fool, and the first customer was a Dapper. Dapper was a clerk, a lawyer's clerk. Lawyer's clerk. Okay, and second customer was a drugger. He is a businessman or a tobacco merchant. Tobacco, sorry, CCU. Merchant. Let me write again. T-O-B-A-C-C. Tobacco merchant. ओके, ये पहला जो है वो कहता है मैं अपनी स्किल से अच्छे पैसे कमा सकूं और जो है लायर को इम्प्रेस कर सकूं. देन ड्रगर डिमांड्स दैट उसका बिजनेस खूब बढ़ सके. एंड थर्ड कस्टमर जो यहाँ पर आता है, थर्ड कस्टमर इज एपिक्योर मैमन. सर, एपिक्योर मैमन.
Okay, sir, Epicure Mammon demands of philosopher stone. फिलोसफर स्टोन, ये महोदय फिलोसफर स्टोन की डिमांड करते हैं, जिससे कि ये डिफरेंट चीजों को सोने में बदल करके ढेर सारा वेल्थ कलेक्ट कर लें. एंड ही इज अकम्पनीड बाय सरली. ओके, ही इज अकम्पनीड बाय सरली. अब यहीं से कहानी भी स्टार्ट होती है. अब एपिक्योर मैमन को ये लोग वादा कर लेते हैं कि फिलोसफर स्टोन देंगे. देन सरली को शक होता है सटिल पर, वो डिस्गाइज में आता है एंड डिमांड्स फॉर अ गर्ल. तो तमाम बातें होती हैं. इसी बीच में दो कैरेक्टर्स और यहाँ आते हैं. कौन कौन आते हैं? एक आती है डेम प्लाइंट. डेम प्लाइंट and her brother Castril, Kastril. Dame Plain is a widow. इसकी मैरिज की बात है, इसलिए लोग आते हैं और इन्हें बताया जाता है दैट सटिल इज अ परफेक्ट मैच मेकर. वो शादियां खूब बढ़िया से फिट करता है, उसका नाम ही शादी राम घरजोड़े. ठीक है, वो फटाफट शादियां मैच फिक्स करता है, इसलिए वो इसके पास आते हैं लोग. लेकिन जो है इसमें बीच में प्रॉब्लम हो जाती है. सारे कारनामे होते रहते हैं. इन बिटवीन होता क्या है कि पता चलता है कि मिस्टर लविट कम बैक, ये वापस आ गए. जैसे ही वापस आ गए, कैप्टन फेस चेंज्ड इनटू जर्नी. और इसने इन सबको बताया, इनको बताया कि दैट ही हैज कन्फेसेस ऑल द थिंग्स टू मिस्टर लविट. ओके, लविट से कन्फेस कर लिया. एंड द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स आर कमिंग, दे आर इन द वे. जैसे पुलिस का नाम सुना, ये दोनों 9-11 गायब हो गए. ठीक है, और इसने लविट से वादा किया कि अगर वो इसे माफ कर दे, देन ही विल fix a match of Lovett and Dame Plaint. And Dame Plaint was wealthy women. और दोनों की मैच फिक्स करके शादी करा करके जर्मी सुधर जाता है. ये सब जो आए थे, ये अपना पैसा गंवा के धोखा खा जाते हैं और प्ले एंड हो जाता है. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन. Why does Lovett in Ben Jonson's play, The Alchemist, leave his house, setting the stage for his servant Peace, along with Subtle, a fake alchemist, to fleece people? Answer is because of an epidemic of plague. Okay, you are clear? Now you should move to next question, next to play. Now the next is pleasure reconciled to virtue. There are two questions from this. The first question is, Ben Jonson's pleasure reconciled to virtue is a domestic tragedy, विलानले, क्लॉसेट ड्रामा. तो अब आप देखिए इसको कैंसिल कैसे कर सकते हैं. क्लॉसेट ड्रामा इसने लिखा नहीं, डोमेस्टिक ट्रेजेडी इसने लिखी नहीं है, एंड विलेने ये है नहीं. तो आपके पास में बचा क्या? मास्क. और आपको अच्छे से पता है कि बेन जॉनसन हैज रिटन सेवरल मास्क एंड हियर दिस इज अ मास्क. ओके, तो प्लेजर रिकंसाइल्ड टू वर्च्यू इज अ मास्क. ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या यहाँ पर आया हुआ है? दिस वॉज अ मास्क
written by Ben Jonson, is staged on 12th night. ये 12th night क्या है जानते हैं? 12th night is 6th January. ठीक है, अब जरा काउंट करिए, 25 दिसंबर से 12वां दिन, 12वां दिन मतलब 12वीं रात, तो 12वीं रात कौन सी होगी भैया? 25 तारीख से 6 जनवरी 12वां रात होगी, दैट इज 12th नाइट. दिस इज अ celebration of 12th night on the 12th night of the Christmas. ओके, तो उस सेलिब्रेशन पर पहली बार इसका परफॉर्मेंस हुआ था किस ईयर में? जनवरी 6, 1618. 1618 की 6 जनवरी की रात में इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था. ठीक है, ऑन 12th नाइट. And it was the first mass in which Prince Charles took part. भैया प्रिंस चार्ल्स की भी एक कहानी है. एक मिनट, ओके. प्रिंस चार्ल्स की एक कहानी है, उसको भी हम आपको थोड़ा सा सुना देते हैं. प्रिंस चार्ल्स की कहानी ये है कि ये महोदय बचपन में एक रोग से पीड़ित थे. रोग क्या था? रिकेट्स. रिकेट्स को हिंदी में कहते हैं सूखा रोग. ये बच्चों की हड्डियों का रोग होता है. ओके, तो ये इस रोग की वजह से ये जो है महोदय वहां से इंग्लैंड बहुत लेट में आए, बहुत बाद में आए नहीं. ठीक है, जब इनके बड़े भाई की हेनरी की डेथ हो गई. हेनरी की डेथ के बाद इन्हें प्रिंस बनाया गया. ओके, हेनरी की डेथ के बाद जब चार्ल्स को प्रिंस बनाया गया तो ये महोदय वहां से यहाँ आए और 6 जनवरी 1618 was the first public debut of Prince Charles, who became later King Charles I, जो बाद में क्या बने? किंग चार्ल्स वन. ठीक है, तो इनका जो पहला पब्लिक डेब्यू था, लोगों ने इनको देखा था, वो इसी प्ले में देखा था. एंड इन दिस प्ले ही परफॉर्म डांस. ओके, इस प्ले में इन्होंने एक डांस परफॉर्म किया था, इन्होंने पार्ट लिया. अब लगभग यही चीजें हमको बतानी है, वो आप नोट कर लें एक तरफ से. पहली बात यहां पर लिख लें, इट इज अ मास्क. फर्स्ट पॉइंट इज mask designed by Inigo Jones. INIGO, Inigo Jones, JONES. इनका नाम हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट आदमी. तो इसका डिजाइनिंग किसने किया था? इनिगो जोन्स. एंड फर्स्ट परफॉर्मेंस, सेकेंड थिंग इज दैट फर्स्ट परफॉर्मेंस is 6th January 1618, 12th night. Okay, sorry.
नाइट। 12th नाइट 6 जनवरी 1618 को इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आप इसे लिख लें। प्रिंस इन दिस मार्क्स प्रिंस चार्ल्स लेटर किंग चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड। ओके, परफॉर्म डांसिंग रोल इन द मास्क। इस मास्क में इन्होंने एक डांस परफॉर्म किया था। ओके, नेक्स्ट इसका एक री परफॉर्मेंस हुआ था। एक्चुअली जो किंग चार्ल्स की मदर थी वो इसके फर्स्ट परफॉर्मेंस के दिन बीमार थी और वो इसे देख नहीं पाई थी। दैट्स व्हाई इट वाज री परफॉर्म। ओके, द मास्क वाज री performed on 17th Feb 1618। 1618 को फिर से री परफॉर्म हुआ और इस री परफॉर्मेंस के लिए जॉनसन ने एक काम किया। इन दिस री परफॉर्मेंस Johnson added a new anti-mask as its start. Under the title तो जो एंटी मास्क इसमें जोड़ा उसका जो टाइटल उन्होंने रखा, टाइटल क्या रखा? वो टाइटल इन्होंने रखा फॉर द ऑनर ऑफ वेल्स, फॉर द ऑनर ऑफ वेल्स। ओके, for the honor of Wells. This much is enough for this mask. Okay, no need to go for summary and other things. And we have discussed these two questions already. And now we are moving to the other plays by Ben Jonson, and we'll discuss all these plays now in very brief, not in detail. हम लोग अब आगे के जो प्लेज हैं उनको डिटेल में नहीं करेंगे, उन्हें बहुत ही ब्रीफ में करते चलेंगे, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हुए कंटिन्यू कर लेंगे और आगे बढ़ सकते। ओके, तो फर्स्ट प्ले यहाँ पर जो है ये टेल ऑफ ए टब। इट इज अ फर्स्ट वर्क, the first work by Ben Jonson. First work by Ben Jonson, but performed in 1633 and
क्या बीच में वीडियो इंटरप्ट हुआ था? 1633 and published in 1640 देखिए ये है तो फर्स्ट प्ले, लेकिन इसके परफॉर्मेंस के मामले में ये बेन जॉनसन के लाइफ टाइम में जितने प्लेज परफॉर्म हुए थे उनमें से लास्ट में आता है। ठीक है, इट इज इन द मैटर ऑफ परफॉर्मेंस वन ऑफ द लास्ट प्लेज परफॉर्म ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, and it was one of the written works, one of the first written works by Ben Jonson. ये रिटन में फर्स्ट वर्क है, परफॉर्मेंस में वन ऑफ द लास्ट है। ठीक है, पब्लिकेशन 1640 है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। और लिखा कब गया था? इट वॉज रिटन इन 1596। ठीक है, and it is influenced from the play. The play is influenced from the plays of Plautus and Aristophanes. Platus, Plautus and Aristophanes. 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 Okay. And it was published. The play was published with a motto. The motto is Inficito, Inficito, Inficito est Inficitor, Infecetor, Rur. This is the motto. The motto has been taken from Catullus, Catullus. Okay, it's enough. Now moving to Isle of Dogs. Year is 1597. The Isle of Dog, ISLE, Isle of Dogs. Okay, written in collaboration with Thomas Nast. Okay, Thomas Nast के साथ कोलैबोरेशन में लिखा गया, and the performance year is performed in 1597, but
At the time of performance, the play was suppressed by the king, and today no copy of the play does exist. ओके आज इस प्ले की कोई कॉपी नहीं मिलती है क्योंकि उस समय किंग ने इसको बैन कर दिया था. नेक्स्ट प्ले इज द केस इन द केस इज अल्टर्ड. द केस इज अल्टर्ड written in 1597-98. 1597-98 and published in 1609. Published in 1609, and it is early comedy play. इसके अलावा और कुछ हम इसमें नहीं करेंगे. That's enough for this play. Okay, now move to the next. Every man in his humor. This is the first play that established Ben Jonson as a prominent dramatist, and written in 1598, performed in the same year. Example of comedy of humors. Of humors. Okay, and next thing is the play moves around. The play moves around the character novel. ये इसके पास एक प्रॉब्लम है, that he has problem of suspecting everyone. ठीक है, एक बात और लिख लें पहले. The role of novel, single W, novel was performed by विलियम शेक्सपियर. ओके, नोवेल का जो रोल था विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म किया था. एंड सेकेंड थिंग इज novel has a habit. Novel has a habit of suspecting everyone. Suspecting everyone. ओके, नोवेल को ये बहुत बुरी आदत है कि वो शक बहुत करता है, हर किसी पे करता है. एंड ही हैज सस्पेक्टेड हिज सन. He has suspected his son and put a spy
आफ्टर हिम। ओके, नोवेल महोदय की समस्या यह है कि हर किसी पे शक करते हैं, और किस पे शक कर बैठे? अपने बेटे पर, और उसके पीछे उन्होंने एक स्पाई लगा रखा, और स्पाई इनको रोज नई नई कहानियां सुनाता है और इन महोदय को गोल गोल चक्री जैसा घुमाता है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर दिस प्ले। ठीक है, समरी में इसके भी नहीं जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। और आपको ये बात याद होगी, ये लिखा कब गया था? 1599। और वॉर ऑफ थिएटर, वॉर ऑफ थिएटर में ये फर्स्ट प्ले था। किसका? बेन जॉनसन का। इसको इस तरह से लिखिए, it was the first play by Ben Jonson in War of Theatre। ओके, एक चीज याद रखिएगा, वार ऑफ थिएटर को एक चीज और कहते हैं, पोएटोमेसिया। POETOMACHIA। ठीक है, इसे पोएटोमेसिया भी कहते हैं, इसको वॉर ऑफ थिएटर्स को। ठीक है, तो वॉर ऑफ थिएटर्स में, पोएटोमेसिया में बेन जॉनसन का फर्स्ट प्ले कौन सा था? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ठीक है, कब परफॉर्म हुआ था? 15 सॉरी, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, नॉट इन हिज ह्यूमर। नहीं, ठीक है, ये परफॉर्म कब हुआ था? 1599। क्लियर? एंड इज अ सटायरिकल कॉमेडी, इज अ सटायरिकल कॉमेडी। ठीक है, सटायरिकल कॉमेडी है एंड इज अ कॉन्सेप्चुअल सीक्वल। अ कॉन्सेप्चुअल, द प्ले इज अ कॉन्सेप्चुअल यस गुलशन। Gulshan, you want to say something? तो इसे किसे क्या कहा जाता है? दैट इज द प्ले एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर इज अ कॉन्सेप्चुअल सीक्वल ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके, क्लियर? And it contains, next point, that is very important point related to War of Theatres, it contains an allusion of Marston's Histiomastisk, HISTRIOMASTIX, Histiomastisk in Act 3
सीन 1। ओके, तो इस प्ले के एक्ट 3 सीन 1 में किसका मेंशन है? हिस्ट्रियोमैस्टिस्क। किसका? बाय जॉन मार्स्टन। ओके, और यहीं से वो जो है इसका जवाब देते हैं हिस्ट्रियोमैस्टिस्क का। ठीक है, अगर और डिटेल में इस चीज को लिखना चाहे तो एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। इन दिस प्ले या फिर हियर द क्लाउन कैरेक्टर क्लोव, CLOVE, speaks fusion in mimicry of Marston's style. In of Marston's style. ओके, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी आप मेंशन कर लें। द प्ले includes several references from Shakespeare. References from Shakespeare's Henry IV, comma, and Julius Caesar. और इसको पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं तो हेनरी फोर्थ पार्ट 2, ठीक है, पार्ट 2 का रेफरेंस यहाँ आता है, जूलियस सीजर का भी आता है। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट। सिंथियाज रेबल 1600। आई होप कि आज हम लोग बेन जॉनसन को एंड करके खत्म कर देंगे। कल से आगे वेबसाइट पढ़ेंगे। 1600। ओके, सिंथियाज रेबल। The subtitle is The Fountain of Self-Love. The Fountain of Self-Love. Okay. And it was written in just only one point for it. It was written in response of Marston's Jack Drums Entertainment. Jack Drums Entertainment.
entertainment. Okay, this play was also written in the same year 1600. क्लियर? इतना ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. That is, next one is Poetaster. The Poetaster is a play written performed in 1601. Clear? There are different titles. That is title in quarto edition, title in quarto publication. क्वार्टो पब्लिकेशन में जो इसका टाइटल था वो था द पोएटेस्टर. और दी सॉरी यहाँ पे नहीं आ पाएगा. The arraignment. Okay, the arraignment. Let me erase this word. Okay, क्वार्टो एडिशन का जो टाइटल था वो था पोएटेस्टर और दी अरेंजमेंट. क्लियर? एंड टाइटल इन फोलियो, फोलियो पब्लिकेशन. फोलियो पब्लिकेशन में जो इसका टाइटल था वो था पोएटेस्टर और हिज अरेंजमेंट. अरेंजमेंट की स्पेलिंग में रिपीट कर रहा हूं, ARRAIGNMENT. ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में. वहां पर द है, यहां पर हिज है. क्लियर? एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहां पर लिख लें. दैट इज द कैरेक्टर ऑफ होरेस. याद रखिएगा, होरेस represents Ben Jonson himself. And the characters Crispinus, CRISPINUS, Crispinus. एंड दूसरा कैरेक्टर है Demetrius, DEMETRIUS, Demetrius Phanius, FANNIUS. Demetrius Phanius is a single name. कौन कौन से कैरेक्टर्स? Crispinus and Demetrius Phanius represents Marston and Decker. Marston and Decker.
respectively. Okay, and next point is the last point, the main character. Character of the play is Ovid. Okay, so remember all these points. That's enough for here. Now move to eastward ho or westward or eastward ho. There is two spelling, Hoe, Ho. Okay, and mark of intervention. So mark of explanation. Okay, so eastward ho, written published in 1605. Okay, in collaboration with Chapman and Marston. Okay, it is the story of a London. It is the story of a London goldsmith named Touchstone. इसका नाम याद रखिएगा. क्या नाम था? Touchstone. Touchstone. Touch stone. And his two apprentices. Two apprentices named Quicksilver, not only silver. Quicksilver and Goldie. ओके, इसके दो अप्रेंटिस और टचस्टोन की कहानी है. ठीक है, कौन कौन है? टचस्टोन की कहानी है और उसके दो अप्रेंटिस की कहानी है, क्विकसिल्वर एंड गोल्डी. ओके, इट इज आल्सो अ सिटी कॉमेडी. A city comedy. Clear? It was written in response. It was written in response of Dekker and Webster's
Webster's westward ho. Okay, and they again responded by writing northward ho. ओके, अब यहां पर मैटर ये है कि पहले किसने लिखा, पहले डेकर एंड वेबस्टर ने एक वर्क लिखा वेस्टवर्ड हो, एंड दिस वेस्टवर्ड हो इज रिप्लाइड बाय चैपमैन, मार्स्टन एंड जॉनसन by writing eastward ho, in which the writers criticize Scottish people and their ways, and the criticism of Scottish people and their ways infuriates the King James I, and he imprisoned the writers Chapman, Marston and Johnson. Clear? लिखने की जरूरत समझ आए, इसे लिख लेना, अदरवाइज याद रखना, ठीक है, कि इस प्ले को लिखने के लिए इनको इम्प्रिजनमेंट हुई थी. सो नेक्स्ट, दैट इज द फर्स्ट ट्रेजेडी, सेजोनस his fall. The first tragedy by Ben Jonson. Okay, एंड और कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखना है कि ये ट्रेजेडी थी, एक फेलियर थी. इपिसीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्ले, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, थोड़ी सी इसकी समरी समझने की कोशिश करते हैं. इपिसीन is a play with subtitle The Silent Women, written in 1609. Silent women are Epicene. Okay, this is the story of Morose. Morose has a problem that he cannot bear a bit of sound. वो जरा सी भी नॉइज नहीं सहन कर सकता है, और उसके घर में जितने भी नौकर हैं सबको सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं. इंस्ट्रक्शंस क्या है कि इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि कोई भी बोल करके बात नहीं करेगा, जो भी उससे बात करेगा एवरीवन टॉक्स हिम इन रिटन, लिख करके बात करेगा, और जो भी दरवाजे खिड़कियां हैं दे आर प्रॉपरली आयल्ड, उनमें सब में प्रॉपरली आयल पड़ा हुआ है, जिससे कि उनमें भी कोई आवाज कोई शोर ना हो. द होल फर्श इज कारपेटेड, पूरी फर्श जो घर की है उस पर कारपेट लगा हुआ है, जिससे किसी के चलने से कुछ गिरने से जरा सी भी आवाज ना हो. ओके, सो जो ये महोदय है मोरोस, इनके एक फ्रेंड हैं, एक ब्रीफ प्लॉट लाइन हम आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा. इनके जो फ्रेंड महोदय हैं उनका नाम है ट्रूविट, ठीक है, सच्चे बुद्धिमान. ट्रूविट ने इन्हें सजेशन दिया, सजेशन ये दिया
जो सारे दोस्तों को दिया करते, भाई शादी कर ले, ठीक ना। मैरिज के लिए इन्होंने सजेशन दिया, लेकिन अब समस्या है कि शादी होगी तो वाइफ आएगी तो लड़ेगी बहुत, ठीक ना। तो इस डर से इन्होंने फिर दूसरा सजेशन दिया, दूसरा सॉल्यूशन दिया कि भाई ऐसा करो, न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन दे दो, किसके लिए, फॉर साइलेंट वुमेन, साइलेंट और डम्ब वुमेन, ठीक है। किसके लिए, फॉर मैरिज। तो इन्होंने न्यूज़पेपर में विज्ञापन दे दिया दैट ही नीड्स अ वुमन हु इज साइलेंट, हु इज डम्ब फॉर मैरिज, और मिल भी गई और मैरिज भी हो गई। देन आफ्टर मैरिज एक इनका नेफ्यू है, उनका भी नाम याद रखिए, सर डॉफिन, DAUPHIN, सर डॉफिन। और इनका एक फ्रेंड है कट बियर्ड, बार्बर है, कट बियर्ड। अब शादी के बाद कंडीशन क्या हुई, जब शादी हो गई, आफ्टर मैरिज द लेडी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, टॉकिंग लाउडली, जोर जोर से बातें करने लगी, चिल्लाने लगी। तो मोरोस परेशान हो गए। देन ही वांट्स डिवोर्स। और शादी कराई किसने थी, इनके नेफ्यू सर डॉफिन ने कराई थी, और ये था एक प्लॉट अगेंस्ट सर मोरोस। तो इसने क्या किया, एक शर्त रखी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को इन्हें दे दे, तब वो इससे डिवोर्स करा देंगे। और इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दे दी और इन्होंने डिवोर्स करा दिया। देयर आफ्टर पता क्या लगा, पता ये लगा कि दिस लेडी वाज एक्चुअली अ बॉय, अ बॉय, एक लड़का है हु इज क्रॉस ड्रेस्ड, क्रॉस ड्रेस्ड। किस लिए, टू प्लॉट अगेंस्ट मोरोस। ये सारा प्लान किसका था, मिस्टर सर डॉफिन का था। उन्होंने ये सारा कुछ प्लान करके उसकी शादी कराई और उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली। ये कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी के बाद हम लोग सिंपली आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेक्स्ट प्ले, कैटलाइन। ये भी ट्रेजेडी है, सेकेंड ट्रेजेडी, ट्रेजेडी ट्रेजेडी बाय बेन जॉनसन, ओके। एंड और कुछ नहीं पढ़ेंगे, ये भी फेलियर थी, ओके। और नेक्स्ट इज बार्थोलोमेव फेयर। सिंपली केवल टाइटल पढ़ करके निकल चलिए, और इसके बाद के जितने भी आगे के प्लेज हैं आपने लिस्ट में देख लिए, वही के वही सारे करने हैं, ठीक है। ओके, देयर आफ्टर हियर इज अ क्वेश्चन, मैच द कैरेक्टर्स विद द प्ले। जो सारे प्लेस हमने छोड़ दिए बाकी के लिस्ट में, उनके केवल आप टाइटल देख लीजिए, टाइटल रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, दैट्स एनफ फॉर यू फॉर दिस टाइम। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर लास्ट में पूरा सिलेबस करने के बाद टाइम बचेगा हम लोग फिर से देखेंगे, और आपके पास भी अगर समय बचेगा तब आप फिर से इस पर वर्क करेंगे आगे। अब जरा देखें, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वोल्पोन, इपिसीन द अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट से आप किसको मैच कर देंगे भैया, मोरोस, ठीक है। एंड वोल्पोन इज सटिल, एंड द अल्केमिस्ट okay, yes. No, sorry, I am sorry, I am doing wrong thing.
I'm back. Just अल्केमिस्ट इपिसीन को आप मैच करेंगे किससे? मोरोस से. एंड अल्केमिस्ट में था कौन? सटिल. और वोल्पोन में कौन थे? मिस्टर बनेरियो. उनका बेटा था जिसको डिसहेरिटेड किया गया था. और एवरी मैन इन हिज ह्यूमर नोवेल की कहानी. दैट्स एनफ. और इसके बाद आते हैं मिस्टर जॉन वेबस्टर. और विल start John Webster tomorrow. Now in this session we have about 6 minutes. If you have any question, please ask. I'm waiting for your questions.